good if like whosoever can switch on the camera, so that will be more interactive, and that's fine. It's open. So Khalid, कैसे चलना है? मतलब you will Okay, sir. ठीक है. देखिए, ठीक see, है? uh, jam is very simple. What we have to do, we have to go through the 10 years question paper, and already, if you all know, I have already sorted all the questions, and it is there on the drive. I think Amit sir has already transferred all the data. Drive and certificate, Khalid. Oh, it's We okay. It's need. okay. If they don't have the drive after the Uh, meeting, I will share again to you, so okay. we can Sure. directly give the all the data related to them. Everything we have already is there. List of books क्योंकि and yes, एक्चुअली sir. ये ग्रुप अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है No, खालिद, but तो वो YouTube, लोग agar, if they have searched on the YouTube how to prepare for the jam, maybe they might have found my video. If they ओके know or not, that I don't know. ओके 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 So in that video is already in detail it is there. I am going to tell the same thing. How we are going to prepare? We have two-fold preparation strategy right now because we are also doing BSc. So we have to clear BSc exam as well as to clear the jam exam. So what we can do, we can match our syllabus with the third year exam, so we can be on the track. Apart from that, we will start our preparation from the beginning. It is not like that we will go to the topic. We have to check the question, what type of question they ask for that particular topic. So you need not to do all these things. It is already done and it is there also. So what you have to do, you have to start preparing yourself for the exam only. How you are going to do this? Jam is very simple. They will ask you very basic question. The first question, the first part, question 1 to 30, what they ask, very basic question. Then they have some little, maybe you can say the level is little bit up in MSQ question, which you have only 10 in number. In that we have mineralogy, igneous and metamorphic petrology. That we need to concentrate. Otherwise, structure is very simple in that one. Engineering geology is very simple in that one, and some part we have physical like this one. The third, the numerical part is very easy. The first, see what you have to do. You have the MCQ part is very easy. They will ask you some numerical part and very basic questions. If your concept is bit clear, you can answer all the MCQ questions. We have problem with MSQ. If you have gone through the papers or not, just tell me. Anyone have gone? Not anyone, because now we are talking in a group. Everyone should be on the same page. Everyone has seen the last year jam paper or means last to last year or last 10 years jam paper. जी बताइए. गुड मॉर्निंग Good morning. सर। हम लोगों ने पीवाईक्यूज मतलब अराउंड 2005 से लेकर के अब तक के जितने हैं 2022 तक के सारे देखे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है. What is PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा. Sorry. देख लो भाई. ओके, माय अपॉलॉजीज। नहीं 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 नहीं. नहीं सही है, सही. इट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स ओके। एक्चुअली थोड़ा सा कोई दिक्कत. बहुत अच्छी बात है. जी सर, बताइए. द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सॉर्टेड आउट, we have pondered over that, and rest we have just gone through all the papers Good. at least. So what part you find difficult in that portion in that paper? Sir, as you were saying, MSQ part, because they are little bit tricky, because every option seems to be like ये भी हो सकता है ऐसा लगता है। अच्छा एक मिनट पहले, उसके पहले सबने ये जो तुम बोल रहे हो साक्षी, वो सबने सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस? Sir, according to me, what I have seen, I Yes. think we all are on different platform, because I haven't done anything in first year and second year. Like, I didn't study properly for geology, so my basics are not as much clear. But right now, the structural part is clear, and I haven't started the petrology part and the paleontology part. So according to me, we all are on different platforms right now. Okay, got it. So Let I think it will yes. be easy, like na, it will be good if everybody speaks. Yes. Let decide. They will not speak. I know how they will speak. Indra. Now I need you to hear something from you. Tell me your status right now. What is your status related to jam? Indra. अभी हमने जो प्रीवियस सर का देखे हैं अभी अच्छा. पेपर। हाँ फिर सर हम तो उसमें क्या टफ लग रहा है आपको? सर अभी हम लोग स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन किए थे और फिजिकल का किए हैं। अच्छा, तो उसमें आपको अभी और क्या क्या टफ लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा?
सर ये हार्ड टू सर्विस नहीं ढंग से ये होल्ड हो जा रहा था तो हार्ड तो नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। प्रिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने स्ट्रक्चरल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं किए हैं, उसके थ्योरी पार्ट्स अभी पढ़े हैं और पेट्रोलॉजी भी थ्योरी कंप्लीट, मेटामॉर्फिक में भी नहीं पढ़ पाई हूँ। मुझे स्टैटिग्राफी और नेट्स और एमएसक्यू टाइप्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। स्टैटिग्राफी का मैं बेसिकली समझ नहीं पाती कि उसमें पढ़ना क्या है, दैट आंसर ओके क्या देना है या उसमें से क्या नॉलेज कलेक्ट करनी है। ओके and some portion of paleontology and economic geology और applied geology मुझे भी स्टार्ट करना है पढ़ने। और क्वेश्चन पेपर मैंने पिछले इयर्स के देखे हैं और सॉल्व भी किए हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक 100 to 100 क्वेश्चंस। वेरी गुड। ओके, जीवंतिका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे मेरा भी न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने सॉल्व नहीं किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ओके। मुझे क्रिस्टलोग्राफी में जो स्टीरियो डायग्राम है वो उसमें प्रॉब्लम है और स्टैटिग्राफी में। ओके। थर्ड ईयर के पोर्शन मेरे काफी बचे हुए हैं तैयारी के लिए। थर्ड ईयर के पोर्शन में मतलब, अच्छा ठीक है, वो उस पे हम समझ गए हाँ, समझ गए। वो हमको समझ में आ गया कि आप लोग कैसे पढ़ना है। मधु, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी बस स्ट्रक्चरल के कुछ पीवाईक्यू किए हैं और मिनरलॉजी में कम किया। मिनरलॉजी समझ में नहीं आती उससे। कोई बात नहीं, वो हमको भी नहीं। मधु, शताक्षी से बात है, स्नेहा। गुड मॉर्निंग सर। यस। सर मेरा अभी मिनरलॉजी का क्रिस्टल लगभग कंप्लीट हो गया है और स्ट्रैटिग्राफी भी नहीं हुई है और सबसे ज़्यादा तो पैलियोंटोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब समझ ही नहीं आता। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने सारे पोर्शंस टच किए हैं, बस स्ट्रैटिग्राफी बिल्कुल नहीं छुआ है और न्यूमेरिकल पोर्शन से पता नहीं क्या डर लगता है, मैं उसको खोलते ही बंद कर देती हूँ। उससे अजीब टाइप का फोमा है, पता नहीं क्या है वो। ओके। तो मतलब एक ये है कि उसको छुआ ही नहीं है, बाकी सब टच किया है मैंने थोड़ा थोड़ा सब में, और सब में मतलब ज्यादा नहीं बचा है, लास्ट के पोर्शन भी बचे हैं। बट नहीं, बचने वाली बात नहीं ना। बात यहाँ पे है कि अगर आपको किसी भी ईयर का अगर जैम का क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या वो सॉल्व कर लेंगे? देखिए यहाँ पे दो चीज है, वो हम उस पे आते हैं। आई हैव गॉन थ्रू वंस, अब अगर उसको रिवाइज करूंगी तो मतलब बेटर हो जाएगा। ऐसा मुझे बाकी सब थियरी पार्ट में दिक्कत नहीं आती, बट वो जो एनएटी सेक्शन होता है मुझे उसी से डर लगता है और वो मैंने सॉल्व भी नहीं किया है। ठीक है। प्रिंसी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर स्ट्रक्चरल फिर भी सही है, उसके क्वेश्चंस कुछ हो भी जाते हैं बट मिनरलॉजी के नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं जस्ट, तो ज्यादा अभी कवर भी नहीं हुआ, एक फ्रेश स्टार्ट करना है अभी फिर से। अब पहले हम एक आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं, क्योंकि अभी देखिए पहले जो आप लोग बोल रहे हैं ना, व्हाट यू आर टेलिंग दैट आपने टच किया है, यू हैव गॉन थ्रू दिस वन, सो इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट यू हैव स्टडीड। द क्वेश्चन इज दैट यू आर स्टडीइंग फॉर जैम। अगर आप जैम के लिए स्टडी कर रहे हैं तो क्या आप जैम का कोई भी एक पेपर उठा के उसको सॉल्व कर सकते हैं? This is the question. No, this is the main question. I'm not talking about particular topic, structure, physical geology, stratigraphy. I'm talking the whole paper starting from question 1 to start question 60. Are you able to solve? This is the question. because Yeah, one by one. Satakshi. सर मेरा जैसे पैलियोंटोलॉजी अभी नहीं हुआ, स्ट्रैटिग्राफी नहीं, मतलब मिनरलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, मतलब जो फर्स्ट ईयर का पार्ट था मैक्सिमम हो चुका है। जैसे स्ट्रक्चरल हो जाता है, फिजिकल हो जा रहा है, मिनरलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी हो जा रहा है। There is a question, another question हो जा रहा है से क्या मतलब है? पहले ही जो आप ऑप्शन लगाती है वो सही होता है या आपको फिर बाद में लगता है कि नहीं? मतलब अगर 10 में से मेरे 7 सवाल, मतलब मैं ये नहीं कह सकती 10, लेकिन 10 में से 8 या 7 सवाल तो पक्का है कि मेरा सही हो रहा है। ओके, गुड। क्योंकि स्ट्रक्चरल के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए कि कॉमन सेंस वाले हैं। वो मतलब वो बेसिकली अगर आपको सिंपल मैथमेटिक्स आती है, थोड़ा सा आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे एक्सिस रोटेट हो रही है, ये सारी चीजें, प्लेन्स कैसे चेंज हो रहा है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस वो कॉमन सेंस के हैं। फिजिकल जियोलॉजी का जो पार्ट है वो मतलब एक
उसमें सिर्फ आउटलाइन अगर सबको पता है, ओवरव्यू भी है, नॉलेज है कि क्या है, तो उससे हो जा रहा है। लेकिन पैलियोंटोलॉजी जैसे सब बता रहे हैं, पैलियोंटोलॉजी में सच में दिक्कत हो रही है, और स्ट्रेटिग्राफी तो समझ नहीं आ रहा उसमें पढ़ना क्या है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा। दैट वी विल सी। ओके, आप प्रिया आप कुछ बोल रही थी जब शताक्षी बोलना चाह रही थी। यस सर, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 और 2070 के सॉल्व किए, तो मैंने टाइम लगाया कि मैं कितने देर में सॉल्व कर हाँ। पा रही हूँ, मतलब जितना अभी तक मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे। यस, तो मैं एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस में अराउंड 17 मैंने सॉल्व किए थे, और जिसमें से 12 मेरे करेक्ट थे। ये एवरेज है। और एमएसक्यू के क्वेश्चन में मैं कुछ तो मार रही हूँ, पर उस 10 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि कुछ एक पॉइंट मिस कर जा रहे हैं, मतलब वो भी होना चाहिए था पर वो नहीं है। और नेट के एवरेज में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। यस, दैट आई नो, वो हमको भी पता है। सी, अभी क्या करना है, we are not talking about BSc first year, second year or third year. What we are talking about the total JAM preparation. We'll start from the beginning. This is physical geology. जो भी उसमें प्रो टॉपिक है अर्थ का, आप उसमें आप करना चाहते हैं तो what you can do, you can start with a simple topic so you can finish most of the part in a quick succession. I will share a PDF in that you have a particular topic to finish that particular time to finish that topic. Means it shouldn't take that much time or beyond that one. And after that you have to revise that one also. So एक एक टॉपिक का, जैसे आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कितना टाइम लगना चाहिए वो उसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो उतने ही टाइम में आपको करना है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे पता चलेगा हो पाया कि नहीं हो पाया? आपको अपना मोबाइल उस समय टच नहीं करना है, क्योंकि जो 5-5 मिनट के लिए जो बीच बीच में मोबाइल उठाया जाता है लाइव मैसेज चेक करने, वो कम से कम आपका 22 टू 23 मिनट वेस्ट कर देता है 1 घंटे के अंदर। तो अगर आपको कहा गया कि 45 मिनट्स में आपको वो टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल को उस समय तक टच नहीं करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी रहेगी। हर एक टॉपिक को पहले जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको, जैसे फिजिकल जियोलॉजी का सारा पार्ट हम पढ़ लेंगे। ऑलरेडी मैं उसका नोट भी शेयर कर दूंगा, उसका नोट्स बना हुआ है, फर्स्ट फिजिकल पार्ट का नोट्स बना हुआ है, वो पूरा का पूरा हम आप लोग को शेयर कर देंगे। ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, ढूंढना पड़ेगा, वो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हम सारा पूरा ड्राइव है सर को शेयर कर देंगे। उस पूरे ड्राइव में एक एक चीज दी गई है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका ईयर वाइज है, टॉपिक वाइज है, दोनों है। आपकी जो स्ट्रेटेजी प्लान रहेगी वो भी है। लिस्ट ऑफ द बुक, जो इसेंशियल बुक है जो आपको पहले पहले जाना ही है, जिससे अगर आप पहले 2 बुक पढ़ लेते हैं पूरी, मतलब पेज टू पेज, कवर टू कवर, एक आपकी प्रवीर सिंह है और आपकी दूसरी आपकी केम बांगर, इन दो बुक को आप गो थ्रू कर जाते हैं तो जैम का आप ऑलमोस्ट 60% पार्ट आराम से कर सकते हैं। बुक पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी? पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप व्हेन यू नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, देन इट इज वेरी इजी टू स्टडी द टॉपिक। जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी, दे आर नॉट आस्किंग टू मेनी टफ क्वेश्चन। व्हाट दे आस्क, ओके व्हाट अबाउट द बाइवॉल्विया स्ट्रक्चर? So if you don't know the question, you are not able to read it properly in terms of JAM. In terms of exam, you can go through all the topic page by page, depend upon what they are teaching you right now. For JAM, no need to study each and everything. Generally, they will ask about the human evolution, talking about the horses, and something about the, basically they talk about this flora and fauna related to Gondwana fossils, like this one. So first we have to study this one, then time permits, we have enough time, then we will go through all the topic again to increase our knowledge, to increase our basic. Why? Because we need to solve the MSQ also, because MSQ need some little bit deep study. Even in MSQ you are able to solve 5 questions, it is more than enough. And in that 5 they will ask you related to structural geology, mineralogy and igneous and metamorphic petrology, related to phase diagram. If you are good in phase diagram, you can solve one question in the common part, this is your MCQ, one question in MSQ and 2 question in numerical portion. It is very easy. So topic wise we will decide what we have to study first. Talking about the applied geology, no need to go through the whole book of F.G. Bell to study dam and slope stability, everything. They will not ask you all this. What they will ask you? Basic formula of Darcy law, basic formula about means how the dip will vary. Even as a
Satakshi told that it is very basic common sense. Same thing will go with the engineering geology also. They will ask you about the deep direction, and they will ask you whether the slope is stable or not, and they will ask you 3 or 4 questions every year. So if you go through all these questions, you are very easily able to solve all the engineering related problems. Then the problem will come for the stratigraphy. For that, what we need to do, we need to study or mug up little bit. It is bit tough, but still we can do that one. For stratigraphy and both paleontology and tectonic, all three topics are connected by T.K. Biswasar in his lecture. It is already available on YouTube. Okay, good. Yes, Sakshi. Satakshi, you have a question. सर लाइक हम लोग अभी स्ट्रक्चरल से शुरू किए थे और मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी पार्ट, सो क्योंकि वो बहुत बेसिक था तो हम लोगों ने वहीं से सब कुछ शुरू किया। तो सर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टाइम दे दिया। तुम्हारे रिसर्च स्कॉलर्स जो थे हमसे सीनियर्स, वो यही बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो मतलब हम लोग को अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि किस टॉपिक पे मैक्स टू मैक्स कितना टाइम देना चाहिए, सो दैट कि हमें भी दिमाग में रहे कि हाँ इतने दिन में हमें ये चीज़ कंप्लीट करना है। एक जी ठीक है, मतलब ठीक है, अल्टीमेटम नहीं है हमारे पास। सर वो बता दीजिए कि किस टॉपिक को हाँ ठीक, कितना ज्यादा इन डेप्थ लेना है। ठीक है, वो हम आपको। ओके सर, मेरी स्क्रीन जब दिखेगी तो बताइएगा। Can I share my screen, sir? Sir, exactly, we want a type of planner. So I that I we have can- that planner. Don't worry. Don't Yes, sir. worry. Full screen. Okay. It's already there. Okay. नहीं. अभी सर शेयर हो गया ना सर? Can you see this one? Yes. We can see that now. It's coming. Satakshi, you can see now. Yes, sir. It This is visible. see. This is for planet Earth. Which topic require how much Earth? Okay, not more than that. Interior of the 4 hour. Okay, even I have compared this topic with the gate also. So if you are going for gate, you can also see this one. So ये पूरा का पूरा आइसोस्टेसी में आपको 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। Sir, could you please send this PPT? सब भेज देंगे, Sure. सब भेज देंगे, कोई Okay. दिक्कत नहीं है। Thank you, sir. ठीक, ये ऑलरेडी इवन ये ओपन प्लेटफॉर्म पे है सारा। आप लोग तो अपने लोगों को शेयर करने में क्या, ये देखिए आपको कहाँ से पढ़ना है, किस किस टॉपिक से पढ़ना है, और ये हमने जो आपका ये सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4, ये रिलेटेड टू आपके नॉलेज पे है कि आपको पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, फिर प्रवीर सिंह जाना है, फिर सबंदर सिंह जाना है, अगर टाइम परमिट्स करे। नहीं तो आपके एनसीईआरटी में ही आपका ये वेदरिंग का पूरा टॉपिक कवर है जितना आपका जैम में पूछा जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी का है, इसमें आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है ये है आपका पूरा। एमपी बिलिंग से आपको ये टॉपिक आपको एमपी बिलिंग से पढ़ने हैं, ये हाईलाइट करके रखे हुए हैं। ये आपके ये वाले आपको कहाँ से पढ़ने हैं, ये आपके देखिए बेसिक मेथड ऑफ स्ट्रक्चर जियोलॉजी, एलिमेंट टेक्निक। पैलेंटोलॉजी आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सारे इसमें करके देखिए बेसिक आपको किससे पढ़ना है। स्टेडियोग्राफी भी ऐसे ही है। इवन हमने कुछ नोट्स भी बना के रखे हैं, वो ऑलरेडी पोर्टल पे है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके जो फर्स्ट पार्ट है आपका प्लेनेट अर्थ का, उसका नोट्स पूरा बना हुआ है। ये मैं सर को शेयर कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। इवन ऑलरेडी ड्राइव है, अगर आप चैनल पे गए होंगे, कोई भी अगर गया होगा तो उसमें नीचे लिंक दिया हुआ है कि ये बुक आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा। अभी तो आजकल तो यूपीएससी का चल रहा है, तो यूपीएससी के सारे नोट्स बन रहे हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लेगा। ये पूरा बना हुआ है, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ये पूरा बना हुआ है, इसमें सब कुछ डाल के रखा हुआ है। कुछ आप लोग को इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है अभी आप लोग को। ये पूरा नोट्स बना हुआ है, अगर आप ये पूरा पढ़ डालते हैं, 200 पेज का है, तो आपका जैम के साथ साथ गेट का भी काम हो जाएगा आपका। इसमें इसकी खासियत ये रहेगी कि जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिलते हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जैसे जैम के एमसीक्यू हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं यहाँ पे। ये एमएसक्यू पूछे गए 2021 में। इसके बाद गेट के भी कॉमन क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको कुछ एडिशनल स्टडीज करनी है तो उसमें एक कॉलम बना हुआ है कि एडिशनल स्टडीज के लिए आप अगर करना है तो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ भी एडिशनल स्टडी में आता है आपका। बेसिकली आपको क्या करना है, पहले आपके पास जो टाइम कम है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक विच इज वेरी स्मॉल और मीन्स समथिंग वेरी इजी। सो आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक, आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करें। जैसे 100% हमारा टॉपिक है जैम का, तो मोस्टली आप क्या करना चाहेंगे, फिजिकल जियोलॉजी बहुत आसान होगी, ज्योमॉर्फोलॉजी बहुत आसान होगी। तो ये सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा।
और हमारा जो प्लान है वो 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 मंथ का भी है। तो अभी आप 6 मंथ को मान के चलिए कि 6 मंथ में आपको पूरा अपना जैम का स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हम ये मान के चलते हैं कि आपने बीएससी में कुछ नहीं पढ़ा है, बीएससी सेकंड ईयर में कुछ नहीं पढ़ा है और थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आप जागे हैं और अभी से आपको पढ़ना है। तो what does it mean that you have to start from very basic. I am not comparing that you know most of the part very well. So leave it, no issue. You will start from day one and you can finish your course in 6 months. Not a big deal. But आपको दिन में 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी यू हैव टू स्टडी। सर और जो जी जैम के सिलेबस है उसमें जो लास्ट में सिलेबस है इंजीनियरिंग अप्लाइड जियोलॉजी में कि जी एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी, इससे हमें पता ही नहीं चला कि डेप्थ क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि रॉक एंड सॉइल। उसमें आपका कुछ नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसी क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी का ऑलरेडी उसमें बेसिकली वो पूछते हैं डार्सी लॉ आपका क्या है, क्योंकि उन्होंने अप्लाइड जियोलॉजी में हाइड्रोलॉजी भी ऐड किया हुआ है और उन्होंने इंजीनियरिंग जियोलॉजी का कट स्लोप का थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते हैं। अगर कोई कट स्लोप है तो स्टेबल है कि नहीं ये पूछते हैं, या डार्सी लॉ पूछते हैं और एक दो फॉर्मूला पूछते हैं। अगर डैम है तो डैम कहाँ पे आपका स्टेबल होगा, दैट यू कैन गो थ्रू योर के एम बांगर और प्रबीर सिंह, ये दोनों बुक में आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जितना पढ़ लेंगे। जो जी ये परवीन सिंह है इसके सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। if you don't know any idea about what geology is this, you can read from cover to cover, you will grasp all the concept, at least basic concept related to physical geology, geomorphology, in mineralogy, crystallography, igneous metamorphic petrology, sedimentology, mineral economics, then you have applied geology also, and then you have some landslide, all these are there, but उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब दिया हुआ है। तो ये होता है कि अगर किसी को नहीं मालूम है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में क्या होता है तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में ये पूछते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि पहले आपको ये बुक तो होनी ही चाहिए, ये बुक तो आप पढ़ ही लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जियोलॉजी क्या है। उसके बाद हर एक टॉपिक की एक एक बुक मिल जाएगी आपको। हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी की, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी आप डैम अगर पढ़ना चाहेंगे तो डैम में भी आपको पूरी एक बुक मिल जाएगी। तो उतना अभी अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को उतना पढ़ना है कि जितना मेरा जैम का हो जाएगा। तो उसका भी हमने बुक का नाम लिख दिया है, उसमें भी आप उसका भी नोट्स है वो भी हम दे देंगे। और फॉर्मूला शीट है मेरे पास, हम फॉर्मूला शीट भी शेयर कर देंगे कि फॉर्मूला आपको क्या क्या पूछा जाता है वो आपको याद होना चाहिए। एक A3 साइज में बना हुआ है, करीब 4 या 5 पेज है, वो भी हम शेयर कर देंगे। मतलब पूरा बेसिकली हम पूरा ड्राइव शेयर कर देंगे। अगर आप ड्राइव में थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। और पढ़ने का हमको तरीका यही करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे अभी आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में जो टॉपिक चल रहा है उसको अपने जैम सिलेबस से कंपेयर करें और फिर उसको एम्फेसिस ज्यादा दीजिए कि इसको हमको कायदे से पढ़ना है क्योंकि ये मेरे जैम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको पॉइंट आउट करना है। जो बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड सेकंड ईयर के होते हैं उनसे थोड़ा यही फायदा मिलता है क्योंकि वो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर वो जैम से कंपेयर कर लेते हैं उसी सब्जेक्ट को तो थोड़ा ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देके पढ़ लेते हैं तो उनका एक पार्ट उस समय कवर हो जाए। जैसे आपने कहा बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी थर्ड ईयर में हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप स्ट्रक्चर के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं क्योंकि आप कॉलेज में भी वही पढ़ रहे हैं। अगर यही चीज आपने बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में की होती, मगर यहाँ पे ये भी समझिए नहीं की है तो उसको रोने से कोई फायदा नहीं है, वो हो गया। जिसने जो अभी है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो करना चाहे तो कर ले, उसके लिए बेनिफिट होगा, वो थर्ड ईयर में आगे परेशान नहीं होगा। बट अगर आपने नहीं किया है तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं ना। जैम मैक्सिमम 6 मंथ का कोर्स है, अगर आप अच्छे से करते हैं 3 से 4 घंटा, और 3 से 4 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप अपने मोबाइल का ट्रैकिंग देखेंगे तो 3 से 4 घंटा आप मोबाइल ही रोज यूज कर डालते हैं, चाहे वो फोन पे बात करने पे हो चाहे वो सोशल मीडिया देखने पे हो। उसमें एक ऑप्शन होता है, अगर आप एक्टिविटी चेक करना चाहें तो अपने मोबाइल में एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, बट आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ बस वही करना है आपको, सिंपल एक एक टॉपिक उठाइए। अब मैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ूंगा और पैरेलल में आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आप अपना करते रहिए क्योंकि आपको बीएससी भी क्लियर करना है। पूरा टॉपिक पढ़िए अच्छे से, जो नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन करिए, कोई नहीं मिलता है बताने वाला पूछ लीजिए, छोड़िए मत। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो हमको इम्पैक्ट करेगा एमएसक्यू में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कोई भी टॉपिक में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेशली मिनरोलॉजी में, क्रिस्टोग्राफी में, स्ट्रक्चर जियोलॉजी में, इंडियन से मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में
और फिजिकल जियोलॉजी में और जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो टॉपिक इसमें आपका थोड़ा एमएसक्यू अच्छा सा बनता है। तो इसमें अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम एमएसक्यू सारा लगा लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो याद रखिएगा, किसी को ये मत सोचिए कि मैं 10 क्वेश्चन कर लूंगा, मैं 50 क्वेश्चन कर लूंगा, मैं 20 क्वेश्चन कर लूंगा, मेरे लिए बहुत है। आपको सारे अच्छे क्वेश्चन करने ताकि आपकी रैंक अच्छी हो। जब आप अच्छे के लिए सोचेंगे तब आप थोड़ा एक नीचे आएंगे, जब आप ऑलरेडी नीचे के लिए सोचेंगे तो वही नीचे तक ही पहुंच पाएंगे। तो ये याद रखिएगा। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि आप सोचिए टॉप पे और करिए कुछ नहीं। टॉप की सोच के टॉप की मेहनत भी करिए, फिर नहीं होता है वो दूसरी बात है। बट हम लोग पहले ही सोचते हैं हाँ ठीक है 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का है, एमएसक्यू छोड़ देंगे, एमसीक्यू तो 20 कर लेंगे, नेट का 15 कर लेंगे, इतना क्वालिफाई नंबर हो गया। अब आप जब क्वालिफाई इतना सोचते हैं तो और रियली कम आता है, क्योंकि आपसे जो और लोग बैठे हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी पूरा करना है, और हम बता दे रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं ना, बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। आप और न्यूमेरिकल से डरने की कोई क्वेश्चन नहीं ना। जैसा कि शताक्षी ने बोला, सारे न्यूमेरिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से, चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने रख दिया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप न्यूमेरिकल का देखेंगे पार्ट, पहले जो 1 to 10 क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है, 11 से 20 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसमें से फेस डायग्राम का ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, या डायग्राम या फिर आपको यूटेक्टिक पॉइंट पे फ्रीडम कितनी होगी वो पूछते हैं। इससे ज्यादा टफ नहीं पूछते, वो लीवर रूल का क्वेश्चन पूछते हैं, कोई टफ नहीं ना। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं आप कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। बट ये स्लोली स्लोली होगा, 2-3 घंटा रोज करना है। तो हम लोग पहला क्या काम करेंगे कि पहले जो मेजर पोर्शन हम लोग खत्म कर सकते हैं, फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी भी रटना है, यही स्ट्रेटजी रहेगी। बस धीरे धीरे हम लोग को पढ़ना है, घबराने की कोई बात नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं। जैम बहुत आसान है और जैम ही बेसिक है आपका आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आप गेट देंगे तब भी आपको जैम को रिवाइज करना पड़ेगा, जीएसआई का एग्जाम देंगे तब भी आपको जीएसआई जैम रिवाइज करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम देंगे बेसिक आपका जैम ही रहेगा। तो जैम थोड़ा अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, और जितना टाइम बचा है वो बहुत ज्यादा सफिशियंट है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यूट्यूब का नाम अपना शेयर कर दो तो वो कर देंगे, अभी कर कर देंगे देंगे, हम लोग। वो कर देंगे। सो वो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कीप आस्किंग। और कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है और कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है। हो सकता हो कि बगल वाले का ज्यादा दिमाग हो, उसको समझ में आ गया, आपको नहीं आया। कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है, उसको समझ में आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है। जितना सिली से सिली क्वेश्चन होगा आप डालिए, कम से कम हो सकता हो कि क्वेश्चन आपको सिली लग रहा हो मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आप जज मत करिए कि सर क्या सोचेंगे, कोई क्या सोचेगा। एक कहावत है यूपीएससी में, कहा जाता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको बेशरम होना पड़ता है। बेशरम से क्या मतलब है कि बगल वाला क्या सोचता है हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। अगर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही तो बगल वाला आके नहीं लिखेगा। अब आप बगल वाले के डर से वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं और वो एग्जाम में आ गया तो फिर आपकी तो एक नंबर गया। और आप भी अच्छे से जानते हैं एक नंबर से रैंक कितनी ऊपर नीचे होती है किसी भी एग्जाम में। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पूछना है। शताक्षी पूछिए। सर अभी जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चरली मैंने पढ़ा है तो ज़्यादा अच्छे से, तो उसमें फोल्ड्स वगैरह में मैकेनिज्म्स पे भी 1-2 सवाल बहुत सालों में आए हैं, बकलिंग पे सर। वो वही कह रहे वो बेसिकली जी पूछिए पहले आप। हाँ तो सर वो मैकेनिज्म में, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी ट्विस्ट मूड्स से मैं पढ़ रही थी तो उसमें डेरिवेशंस हैं, मतलब बकलिंग से रिलेटेड, और पूरी मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग में ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ना है, क्योंकि सवाल जो है आया तो बेसिक ही है, लेकिन अब उसको पूरा पढ़ना है कि मतलब समझ नहीं आया वो चीज़ कि कैसे करना है। ओके देखिए, और एक सेट था टोपो शीट इंडेक्सिंग की तरफ से आया था, वो 2017 का सवाल था, वो तो वो एक भी नहीं मिनट समझ आया था। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करिए। देखिए आपकी टोपोसेट इंडेक्सिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो सर क्योंकि वो हम लोग कभी पढ़े नहीं थे तो एकदम नया चीज लगा था। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। यही पूछा था ना उन लोगों ने? हाँ सर, तो कुछ नंबर दिए थे और उसका कुछ ये है ना, हाँ एक मिनट, वो इसी पे आ रही है। ये है पूरा टोपोशीट, ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। ओके सर। जब आप हाँ, ये है, यही सर था, यही था, इसी तरीके से। अब आपको सर आपको यकीन होगा ये फिगर मैंने कहाँ से उठाया सर? ये एनसीईआरटी की बुक में है सर। ओके
ये भी एनसीईआरटी की बुक में है, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हाँ, ये इसी तरीके से था। ठीक है, ठीक है, ये है, यही था सर। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इतना पढ़ लीजिएगा। आपका ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बाद में, क्योंकि सर वो प्रोफाइल मेरा ये है कि अगर वो जो सवाल जैम में अब तक आए हैं तो उससे हमें एक लेवल ऊपर उठ के पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इस साल का हमने एक लेवल ने हमको 2 लेवल हाँ ऊपर उठ के पढ़ना क्योंकि पड़ेगा। वो हर साल लेवल अपना जो अपलिफ्ट ही कर रहे हैं, तो हम जब तक उससे उठ के नहीं करेंगे तो सवाल तो उठ के आएगा ही। सो वहीं देखिए हमको, देखिए हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन की लेवल की बात हो रही है, उसी लेवल को एक्चुअल में मैंने लिखा है, उसी को बताने जा रहा हूँ। सी हाउ वी हैव टू स्टडी। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा लेवल 0 है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। सो वी हैव टू गो टू लेवल 1। तो लेवल 1 कैसे जाएंगे? वी हैव टू स्टडी एटलीस्ट what is there in the geology related to physical, what is interior of the earth। पहले हमको 3 डिस्कॉन्टिटी पता चलेगी, फिर उसके बाद हम डिटेल डिस्कॉन्टिटी में जाते जाएंगे। ठीक है, हमको अभी तो 2 ही पता है, मोहर पता है जो कि आपकी वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होगी, फिर नीचे हमको पता है कोर और मेंटल को हटाने के लिए। ठीक है, बट जैसे जैसे हम अपना लेवल अप बढ़ाते जाएंगे, हम और तरह की डिस्कंटिन्यूटीज में भी डिटेल करते जाएंगे। तो हमारा लेवल क्या होगा? पहले हमको लेवल 0 से 1 पे जाना है, जहां हमें पता होना चाहिए कि मिनरोलॉजी क्या होता है, इग्नियस पेट्रोलॉजी क्या होता है। अगर हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम डैम के बारे में पढ़ते हैं, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा लेवल 0 से लेवल अप आएगा। अब हम लेवल 1 से लेवल 2 पे जाएंगे, कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, उसमें यूनिवर्स आएगा, उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, और डिटेल पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी में भी क्या क्या हुआ था, लोगों ने क्या क्या हाइपोथेसिस दी, वो पढ़ेंगे। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम उसमें कंटूर के बाद वी रूल पढ़ेंगे। तो उसका जैसे आपने टोपोशीट बताया, टोपोशीट के और क्या क्या फायदे होते हैं वो पढ़ेंगे। ये हमारा लेवल अप होता जाएगा, बट ये परमिट करेगा हमारा टाइमिंग, हमारा सिलेबस और हमारी नंबर पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी की डेविस की बुक खोल के बैठ जाएंगे जो कि 505 पेज की बुक है और हमें पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वो हमको अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, दैट विल हेल्प यू टू बी एक्सपर्ट इन स्ट्रक्चर जियोलॉजी, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू क्लियर जैम। सो हमको हमारी जो स्टडी रहेगी, अपना लेवल अप करते करते साथ साथ हमको हमारे जैम की प्रिपरेशन भी करनी है और बीएससी भी क्लियर करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा ये रहेगा कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया, क्वेश्चन देखा स्ट्रक्चर जियोलॉजी का, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उतना ही पोर्शन हमको पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पढ़ना? पहले मेरी बेसिक बुक रहेगी, या तो प्रबीर सिंह या के एम बागर, उसमें दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, वो भी कैसे देखना है, आपको जल्दी से पन्ने पलटने, उसको एक एक नहीं पढ़ना है। हेडिंग देखिए कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन वो है उसमें है कि नहीं है। जैसे कि एक अपेरेंट डिप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो के एम बाबर के लास्ट का जो अपेंडिक्स 2 है उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो बस उतना ही हमको पढ़ना है के एम बागर का उस पार्ट के लिए, तो वो आपका 1 नंबर पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, फिर अब आप करते हैं मिनोलॉजी या इग्नियस मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? वो फेज डायग्राम का पूछते हैं। जी जीवंतिका बताइए। सर जो मिनरोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली उसमें स्ट्रक्चर और कैसे सिलिकेट अरेंज है, वो सब याद नहीं होता है सर, कौन सा मिनरल कौन सा उस पे भी आ रहे, उस पे भी आ रहे, उसको कैसे करना है। चलिए पहले हम क्या कहते हैं, आपको मिनोलॉजी की बात कर ले कि मिनोलॉजी को हमको पढ़ना कैसे। देखिए मिनोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो पहले हमको सॉर्ट आउट करना है कि मिनोलॉजी के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, अभी तक गेट में 10 साल या 15 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो उस पूरा मिनोलॉजी में हमको ये देखना है कि हम कौन कौन सा सॉल्व कर ले रहे हैं। जो सबसे टफेस्ट पार्ट है और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको हमें दूर रखना है, क्योंकि अगर हमने उसमें 5 दिन अपना दे दिया तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट 80% का जो पार्ट है उसको हम नहीं ध्यान दे पाएंगे। मिनोलॉजी का जो मेन पार्ट होता है उसमें आपको जो आप बोल रहे हो कि क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बेसिक बेसिक मिनरल्स हैं। आपको उसमें सबसे पहले बावन रिएक्शन सीरीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें बेसिकली। फिर उसके बाद वो फेल्डस्पार के पीछे बहुत पड़े रहते हैं और क्वार्ट्ज के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, फिर बचा तो ओलिविन पे आ जाते हैं। इन 3 ग्रुप को आप अच्छे से पढ़िए और सबसे अच्छा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लीजिए। क्रिस्टल सिस्टम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते ही है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। अगर ट्राइक्लिनिक है तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, या ए बी और सी क्या होगा। अगर आप क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं क्यूबिक सिस्टम है तो उसमें क्या होगा। उस क्यूबिक सिस्टम में फिर थोड़ा और डिटेल में जाते जाते वो हम तब पढ़ेंगे जब या तो वो चीज हमें समझ में आ रही हो अभी, या हमारे पास टाइम हो। ठीक है, आपको मिलर इंडिसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मिलर इंडिसेस आपको अच्छे से आना चाहिए, वो बहुत आसान से होता है।
तो वो सारे फॉर्मूले भी बने हुए, वो पहले हमें क्या करना है, अपना लेवल अप करना है। हमको छोटी छोटी चीजों को, ओके, हम लोग का जो रहेगा छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों को भी नहीं करेंगे तो फिर हमको दिक्कत आएगा। जैसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, कहीं पे सी प्लस टू यूज करते हैं, कहीं पे सी प्लस वन यूज करते हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैम का सबसे आसान तरीका है क्लियर करने का, अपने आप को शांति बनाए रखना, क्योंकि जब हम लोग जैम का पेपर देखते हैं वो इतना आसान लगता है, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हमको सब आता है, हम सब कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार आराम से पढ़ना है। जैसे ही आप तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, आपको आंसर अपने आप पता चल जाता है। बहुत आराम से पढ़ना है, पैनिक नहीं होना है कि कैसे होगा कैसे होगा। जितना कर रहे हैं पहले उतना कर लीजिए, लेवल अप करते जाइए। अब ये आपकी कैपेसिटी, आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे करना है। दूसरे को मत देखिए कि उसने आज स्ट्रक्चर पूरा पढ़ डाला और तीसरे ने पैलेंटोलॉजी पूरा पढ़ डाला। बाकी आप लोग 2 चीज कर लीजिए, एक तो बेशरम बन जाइए और एक बन जाइए सेल्फिश। आपका फायदा हो रहा है, अपना करते रहिए, शर्माने की जरूरत और नहीं एक है। और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपस आप, में शेयर करना चीजें। अगर तुम लोग नहीं हाँ, करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो करना शुरू करो। क्योंकि कोई दोस्त जब बताता है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमको मनमेर सर बताते समझ जाते थे, बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हुआ है। तो दोस्त जो बताते हैं तो बहुत मजा आता है। और आप लोग इवन ट्राई कर सकते हैं कि भाई आधा टॉपिक तुम पढ़ो, आधा हम पढ़ ले, फिर एक दोनों डिस्कस कर देंगे, टाइम बच जाएगा। वो यूपीएससी वाले यही इसीलिए तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना वो, ताकि उनका टाइम बचे, क्योंकि हर आदमी बहुत कुछ नहीं पढ़ सकता है। और सिली से सिली क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप सोचेंगे क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, तो क्वेश्चन जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक दिन पहले अपने टीचर से पूछिए, सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे है। वो आपको टॉपिक बता देंगे। 15 से 20 मिनट निकाल के क्लास अटेंड करने से पहले वो टॉपिक एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 5-10 मिनट का काम है। नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसकी फोटो खींच लिए, मोबाइल में रख लीजिए, मोबाइल में चलते चलते देख लीजिए, कोई ट्रैवल करता हो उसमें देख लें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको टॉपिक के बारे में एक आइडिया हो जाता है, फिर उसके बाद आप आराम से उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आप, हम लोग क्या करते थे, मतलब इन जनरल, कि हम लोग पहले पढ़ लेते थे, फिर जब एग्जाम होता था तब फिर नोट्स निकालते थे या फिर बुक पढ़ते थे, तब लगता था अरे ये इसका क्या मतलब है, जबकि वो सर पढ़ाए होते थे। तो आप पहले से अगर आप बिफोर हैंड आप तैयार रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, बस आपको सिस्टमेटिक होना पड़ता है थोड़ा सा बस। गुड, सर एक आई थिंक टाइम मैनेजमेंट को लेके एक क्वेश्चन है या दैट इज व्हाट मेरा। उसको ये मैनेज करने की सोच रहा है कि अटेंडेंस शेड्यूल था, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 30 ओके सर, सर देन वील गो अहेड। नहीं सर नहीं, एक्चुअली दिक्कत पता नहीं दूसरों के साथ हो रही है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हो रही है कि फिजिक्स पे हम लोगों को, मतलब जो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको भी देखना है। वो तो एक तरीके से कोर सब्जेक्ट है, उसमें तो पास होना ही होना है बीएससी वो करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो सर ये एक बैलेंस जो जी है वो नहीं बन पाता है कि फिजिक्स को कितना टाइम दे। हम लोगों के पास 6 बजे तक, हम लोग 5-6 बजे घर ही आ रहे हैं, 4-5 बज जाते हैं। तो सर वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि जैम के लिए कैसे करें और फिर उसके साथ वो भी, और कितना उसको इम्पोर्टेंस दें। तो पहले ये भी क्वेश्चन है कि एग्जाम तुम लोग केवल इसके लिए जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिजिक्स में भी अप्लाई कर रहे हो? सर सिर्फ जियोलॉजी के लिए किए हैं। एनी सजेशन? हाँ सर, बहुत बहुत आसान है सर। आप जैसे 6 बजे तक आ रहे हैं, आपको अभी शुरुआत में क्या करना है, पर डे का 1.5 से 2 घंटा जियोलॉजी पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए क्योंकि उससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। आप वीक डेज में, जैसे आपका मंडे टू फ्राइडे या फिर अगर यूनिवर्सिटी सैटरडे तक चल रही है, तो आप एक एक घंटा पढ़िए, थोड़ा सा टॉपिक पढ़िए। आज मुझे इतना पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ में मैं 4 या 5 पेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 1 घंटा बहुत होगा आपका। तो आपको ऐसे 6 घंटे मिल गए, और टोटल आपको पूरे वीक में 12 से ज्यादा घंटा नहीं पढ़ना है। तो आपको बचा संडे। संडे आप आराम से उठिए, 6 घंटा पढ़ डालिए, तो आपका कितना हो गया, 12 घंटा आपने वीक में पढ़ लिया। ये सबसे सिंपल तरीका होगा आपको मैनेज करने का। बीच में आप फिजिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, और जो वहां पे पढ़ाते हैं उसी में से वो क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है फिजिक्स में। तो उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको याद करिए और प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल में आपको 75 में से अच्छे नंबर लाने। बाकी जैम की जो तैयारी करनी है आपको, पर डे जो वीक डेज है जिसमें आप कॉलेज जा रहे हैं, 1-1 घंटा पढ़िए। उसके बाद जो आपका संडे मिलता है, संडे आप जितना ज्यादा मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, 10 घंटा
4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको यूज करिए। जब आप शेड्यूल देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वीक में आपको कितना दिन पढ़ना है। ये समझ लिए। टारगेट आप 3 महीने का रखना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि अभी से आप 3 महीने का ही शेड्यूल तैयार करिएगा। वो 6 महीने पे मत जाइएगा। 1 महीने का हम लोग बाद में करेंगे, पहले अभी से 3 महीना, मतलब आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करके अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और 3 महीना कोई बड़ी चीज नहीं ना, आपको पर डे के हिसाब से 2 घंटे 1 घंटा पढ़ना है, मतलब पूरे वीक के हिसाब से आपको 10 से 12 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ना है। वो आपको पूरा 3 घंटे में 3 महीने में कवर हो जाएगा। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको ऐसा नहीं कि स्क्रैच से स्टार्ट करना है। वो तो हमने लेवल 0 लेवल 1 कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है। बहुत से हमको स्टूडेंट्स मिलते हैं बीएससी 3rd ईयर में है, उनको यही नहीं पता है कि जियोलॉजी की कौन सी बुक से हमको रिफर करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपके पास सक्सेस के लिए जो डायरेक्शन है बस वही चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप लोग को पास सिर्फ पढ़ाई करनी है और टाइम भी सफिशियंट है। अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और जब जब छुट्टी होती है, जब जब मिलता है, जितना ज्यादा टाइम होता है तो उसमें फिर आप अपना ज्यादा पढ़ लीजिए, ऐसे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। बट उसके लिए आपको अपना मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लिटरली बता रहे मोबाइल आपका 1.5 से 2 से 2.5 घंटा यूज करता ही है आपको, जो आपको पता नहीं चलता। नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ वो बता रहे हैं। अभी हम कोविड से थोड़ा सीरियस हुए हैं, तो ये सब नोट्स जो है ये कोविड के टाइम में बनाने स्टार्ट किए। सर को तभी चैनल भी बनाया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत टाइम है, लो यूज किया जाए। तो सर कोई, अगर आप हम शायद अमित सर हमको 2 साल पहले पूछते तो हमको खुद नहीं पता था कि जैम का सिलेबस क्या है। वो धीरे धीरे होता है, अब टाइम नहीं वेस्ट करते, आप रूटीन टाइम है, क्योंकि हम 40+ भी हो चुके हैं तो हमको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। तो यही हम लोग को अपने आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे को बदलना है अपने प्रोडक्टिव वर्क में। हम लोग 1-1 घंटा बर्बाद कर देते हैं एक जगह पे बैठे बैठे, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे मम्मी से बात करने में हो, चाहे दोस्तों से बात करने में हो। ठीक, हम ये नहीं करें कि दोस्तों से बात मत करिए। जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं वो 4 साल अपनी जिंदगी का कहाँ दे देते हैं उनको खुद नहीं पता चलता। एक बहुत अच्छा सा प्राइम अमेजॉन प्राइम पे एपिसोड है क्रैश कोर्स करके। टाइम मिले, अगर टाइम मिले तो देखने की कोशिश करिएगा कि लाइफ कैसे होती है स्टूडेंट्स की और कितना प्रेशर लेते हैं। हम कहते हैं उतना प्रेशर अपने जैम के लिए नहीं है, क्योंकि अपने में लोग भी कम है, सिलेबस भी ठीक है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट मारते हैं तो आप रैंक 1 ला सकते हैं, ये मान लीजिए। आप सब टॉप 10 में आराम से आ सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है जैम, बहुत आसान है। और एक बार जैम का बेस आपका बन गया तो गेट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप कोई भी सिलेबस देखेंगे उसमें जैम से ही स्टार्ट होता है। आपको अगर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है तो जैम में जितना पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा लेवल आ पाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, आपको जैम क्लियर करना है। उसके लिए जो करते बने करिए। मेन टारगेट क्या है, सिर्फ जैम। एक बड़ा बड़ा सा जैम लिख के अपने स्क्रीन पे, कहीं पे मोबाइल पे भी लिख दीजिए, मोबाइल के स्क्रीन सेवर जो, जब मोबाइल बंद हो तो दिखे जैम, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। और उसके लिए आपको जो जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो यूटिलाइज करते जाइए। आप अपना नुकसान मत करिए। क्वेश्चन ना पूछ के ना सर का नुकसान है ना मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है। बताइए कोई क्वेश्चन? Any questions anybody has? If not, then probably we can close this session. Anybody has like last questions, or shall we close it? Okay, good. So we'll close that session. No? ओके, ठीक है? थैंक यू, Thanks. थैंक्स अ Thank you, लॉट। sir. ओके, बाय बाय, Thank you, बाय sir. बाय, टेक केयर।